ओके फटाक से कुछ फॉर्मूलास को एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हम अभी प्रॉब्लम करेंगे कोन सिलेंडर, तो कोन से स्टार्ट करेंगे, कोन के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो कोन में व्हाट ऑल थिंग्स डिड वी सी? The curved surface area of a cone is given by pi r l, where l is equal to r square plus 8 square under the root, and then the total surface area will be the pi r l will be always there, and you add the area of the circle right at the base. So pi r l added with pi r square. Okay, so you can have pi r into l plus r. So you can write this as pi r into l plus r. Very good. So this is all about cone. And then when we go to sphere, जब हम sphere में जाएंगे, तो the volume of a sphere is 1/3 4/3. Sorry, we didn't write the volume. 4/3 pi r cube always. Okay, and sphere has only one surface area, which is 4 pi r square. When you come down to a hemisphere, then hemisphere's curved surface area will be half of this 2 pi r square, and total surface area will be 3 pi r square, because नीचे का सर्कल भी आ जाता है. The volume is given by 1/3 pi r square each. ठीक है, now we will take some problems and we will try to see how to utilize our knowledge about cones. तो करेंगे एक एक करके. आइए फटाक से एक क्वेश्चन ऐसे मैं उठाता हूं. You should at least 2 children should have one NCERT within you. Okay, keep one NCERT, page number 147 of the new book. So keep at least one NCERT with you, at least one NCERT. Okay, now सबसे पहले लास्ट प्रॉब्लम करेंगे. लास्ट प्रॉब्लम को लोग हार्ड मानते हैं. A heap of wheat is in the, क्या हो गया? हाँ, वो क्या है? टेक्स्ट बुक भूल गई. मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है, पर वो ले लेगी. लाइट जला ले, लेकिन वो मोटा है, पुराना मॉडल है. हाँ, लाइट जला ले, उसमें खोल लो. लेट हर कम. हाँ, गिव 2 मिनट्स. लाइट जला के देख, 9th का सेक्शन ऐसे रहेगा. 10 के बाद 9 आएगा. देखो किताबें, ब्लू कलर का मोटा, उसमें पॉलिथीन लगा हुआ है. मिल गया? अरे मिल गया. कितना देर लगता है? चलो उसमें कौन निकाल लो, थोड़ा ज्यादा रहेगा. आपका पेज नंबर मैच नहीं करेगा. लास्ट इंस्पिरेशन फोटो लास्ट के आसपास. लास्ट बोला तो लास्ट पेज ही खोल रही है. हाँ, क्यों रे? ये सब तो लास्ट क्लास में लिखा था, अभी फिर क्यों लिखे? तो कैसे ढूंढ रही है वो? किताब मेरा है वो. फट करके इतना टाइम लग रहा है. कौन कौन कौन? ढूंढ रही है. फोन में जाओ ना भाभी. ये टेक दैट बुक. मतलब घर में जाके आपने बुक ही नहीं खोला है, अपना बुक भी नहीं खोला है, क्योंकि चैप्टर के पेजेस सेम है. आफ्टर दिस हाँ, कौन सा? लास्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक अ हीप ऑफ व्हीट. अब देखो ना उसमें हीप ऑफ व्हीट वाला कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है तो छोड़ो. देखो, सो वी हैव अ हीप ऑफ व्हीट. A heap of wheat is in the form of a cone. So the shape is that of a cone whose diameter is 10.5. अब फिर तुम लोग दोनों चबर गए आज, लेकिन पूरा ये फेंकूंगा मैं मिसाइल की तरह. आया? मिला? एक आवाज में सुनूंगा ना, उसी को उठाऊंगा मैं. ओके, a heap of wheat is in the form of a cone. A heap of wheat is in the form of a cone. So let's first draw the diagram. So sorry. A heap of wheat is in the form of a cone. As a cone, as a heap of wheat रखा हुआ है. And it says whose diameter is 10.5 and height is 3 meters. So diameter is how much beta? 10.5. So let's put the diameter. Diameter is 10.5. And there is a height also given of the cone. Okay? So the diameter is 10.5. That means the radius should be how much? 5.25.
and the height is given as 3 meters. Just check on the unit. हाँ बेटा ये भी unit, this is 3 meters in unit, सब meters unit में होना चाहिए. Okay, then it says find its volume. तो पहला वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं. Find the volume of the cone. Volume of the cone is always given by 1/3 pi times radius square into the height, और आपके यहाँ पे r का स्क्वायर कितना है 5.25 स्क्वायर हो जाएगा, and h value is how much 3. Now when you do such problem, see the more you get into decimal the more it will bother you. तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको कैलकुलेशन आसान करना है तो 1/3 पाई को कितना लिखेंगे 22/7 and then 5.25. 5.25 is 525 into 525 divided by 100 and h is 3. Just check. 3 और 3 कट जाएगा बेटा. उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे. क्लियर अनन्या? अब अभी वॉल्यूम पूछा है. आई एम जस्ट डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द. आपने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा? अब मैं भी 9th वाला ही कर रहा हूं. उसमें लिखा है फाइंड इट्स वॉल्यूम. पढ़ते ही नहीं हो ना. मोर ईगर टू फिनिश द प्रॉब्लम. फाइंड इट्स वॉल्यूम. आई एम ओनली डूइंग वॉल्यूम. सो 3 कैंसल्स 3, 7 कैंसल कर लेगा 7, 7 49, 50, 51, 35, 7 5 is 35. देन आगे आपके पास 22 है, 45 है और 525. So if you multiply all of them, 525, इसको भी आप ट्रिक से करोगे तो इजी हो जाता है. 500 can be multiplied 4 times. देखो सर ट्रिक लगाओ. 500 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 40. See if you get stuck up you can do like this also. 500 plus 25 multiplied with 40 plus 5. ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना. अब कैलकुलेशन इजी हो जाता है. कितना हो गया ये 5 4 जा 20. फिर यहाँ पे 000 0 3 zeros ये हो गया. देन 500 multiplied by 5. 5 5 is 2500. फाइन. तो हमने 500 multiplied by this भी कर लिया. 500 अब 25 से करो 40. 25 into 4 is 100. So in 40 will be 1000 and then 25 5 is 125. बस ये वाला पोर्शन आ गया. इस पोर्शन के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा बेटा 22 मल्टीप्लाई होगा और नीचे कितना से डिवाइड होगा 10000. अब थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन. इसको ऐड करेंगे तो कितना है 5. इसको ऐड करेंगे 2, 5 और 1 से हो गया 6, 2 और 1 3, 2. इसको फिर 22 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दें. चलिए. सो दिस पार्ट यू विल बी एबल टू डू. एनी इश्यूज ऑन दिस पार्ट? नो. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. The heap is to be covered by a canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas. अब इस heap को एक canvas से cover करेंगे rain से बचाने के लिए. एक बार canvas means like a birthday cap we will make. So you are only related with curved surface area, not total surface area. The wheat is already on the ground. So the cap will be on top. So when you start finding out the CSA of this question. So this is what? This is question number 9. Okay. So the CSA will be given by pi times the radius multiplied by L, where L is given by a root of r square plus h square. So data is given. This is a calculation intensive problem. ठीक कर लोगे? H, you have H. Actually इसका रूट निकल जाएगा. Its root will be easy. The root will be what बेटा? What is r square? 525 square plus what is h square? 3 square 9 divided by 10000. इसी का रूट करना है.
ये तो बाहर आ जाएगा, it will come out as 100 and then in the root you have 525 square plus 9. You will see that this will end up in a perfect square. That's why they have given you like that. Try to do 525 square. अच्छा 525 स्क्वायर फास्ट कैसे करोगे भाविया? 500 प्लस 25 होल स्क्वायर a स्क्वायर. 5 into 5 is 25 00 a स्क्वायर. ठीक है, then 2 more zeros, a square plus 2ab. 2 into 500 is 1000. 1000 into 25 is 25,000 plus b square. 25 is how much? 625. बस हो गया. 5 2 6 5 7 2. इसके साथ 9 ऐड करेंगे. 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 2 7. 625 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 634 हो जाएगा. और इसका स्क्वायर रूट निकालना है. इसका स्क्वायर रूट फटाक से निकाल पाएंगे पैर बना के. और एल्स फैक्टराइजेशन एंडिंग विद 4 try to get its square root हो जाएगा and then it will be divided by 100. तो आपको आपका आंसर आ जाएगा. हुआ ये प्रॉब्लम समझ में आया? ओके, इफ दैट इज द थिंग, okay, we'll go for one more conversion. ठीक है, चला go to the next problem. We are on the same exercise, question number 9, 11.3 NCERT. See, if you have understood the problem, will not waste time on calculation here. You can complete this on your own also, provided you complete it. Going to the next problem. Before that, let's understand some conversions. Like volume is expressed in meter cube. There can be another unit called centimeter cube. There can be another unit called liters. Our job here, Ananya madam, यहाँ ध्यान दीजिए, वो छोड़िए, वो घर पे कीजिए. Our job here is to understand the interconversion between centimeter cube and liters. ठीक है, मैं आपको इजी वे बता सकता हूं, लेकिन आप पहले सोच लीजिए कि कैसे इसको निकाला जाए. Suppose you forget it. Okay, so the technique, see, this is where you all don't pay interest, and in the long run this is what will be actually more important for you in your career. So let's understand what is the definition of 1 liter. 1 liter is the volume of a cube whose every edge is 1 decimeter. 1 liter is the volume of a cube whose edge is 1 decimeter. इसका मतलब 1 liter कितना हुआ? 1 decimeter into 1 decimeter into 1 decimeter. Very uncommon unit. We don't use decimeter so much. ठीक है ना? आ जाओ, फिर कन्वर्शन देख लो थोड़ा सा. मिली, सेंटी, डेसी. उसके बाद क्या आता है? बड़ा करके लिखेंगे, ग्राम, मीटर, देन लीटर. उसके बाद आता है डेका. ऑब्जर्व, आई हैव गॉन ऑन कैपिटल नाउ. हेक्टा एंड किलो. ठीक है, हम सो एवरीवेयर यू गो इज अ 10. If you take 10 of millimeters, you end up in 1 centimeter. So if you take 10 centimeters, you will end up in 1 decimeter. Do you agree? You're going to the bigger unit this side. So 1 dm can be written as 10 cm into 10 cm. So therefore, many times I have explained this to you, but आप लोग भूल जाते हो ना. 1 liter is 1000 cm cube. This is when you are seeing centimeter cube and liters. अब जरा देखते हैं कि इसका और इसका क्या रिलेशन है. So let's see 1 meter cube. 1 meter cube is 1 meter
1 मीटर 1 मीटर। अग्रीड? पहले समझ लो फिर आप खुद डिकोड करो। हर मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लुक, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम सेंटी टू मीटर, सेंटी टू डेसी 10, another 10, so this is 100, ठीक है ना? तो this becomes 100 सेंटीमीटर into 100 सेंटीमीटर। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, this becomes how many zeros बेटा? 6 zeros, so can I write it as 1000 into 1000 cm cube। अब 6 zeros है ना, ठीक है? 1000 cm cube को अभी अभी आपने कन्वर्ट किया, what is that? 1 liter। इसका मतलब 1 meter cube is equal to 1000 liters, or you can write 1 meter cube is equal to 1 kiloliter। 1000 लीटर मतलब 1 kiloliter। क्लियर? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कुछ ऐसा है, अगर आपके पास ऐसा एक क्यूब है जिसके साइड्स हैं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, द बेस्ट वे टू इमेजिन इज टेलर शॉप या शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स के दुकान में जो स्टिक होता है ना, दैट ब्लैक स्टिक with which they measure cloth and they sell it to you when you're buying, that is exactly 1 meter। so think of a cube which is of that size, जो कपड़े की दुकान में जो स्टिक होता है ना, रेमंड्स वगैरह में, that is how much? 1 meter 1 meter 1 meter 1, उस साइज का एक क्यूब बनाओ, तो उसमें आपका 1 लीटर के 1000 वाटर बॉटल्स आ सकते हैं। yes, that's what is the logic। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये जो हमारे पास 1 लीटर का, ये तो 1 लीटर नहीं है, भाविया वाला फिर भी 1 लीटर के आसपास है, वो छोटा है। ऐसे 1 लीटर के बॉटल कितने, इनका कितने बॉटल्स का पानी आप खाली कर पाएंगे? 1000 बॉटल्स का पानी खाली कर पाएंगे। अब आप इस चीज को खुद लिखने की कोशिश कीजिए। फ्रॉम, इफ यू फंबल यू लुक एट द बोर्ड, बट डोंट कॉपी इट डाउन। इफ यू कॉपी इट डाउन यू विल लर्न नथिंग। गो बाय द लॉजिक। मैं आपकी जगह होने से सबसे पहले ये बनाऊंगा, दिस इज माय रामबान, ये सब बताता है मिली सेंटी डेसीग्राम। इस साइड जाएंगे तो 10 10 10 10 बढ़ेंगे, और फिर ये वाला डेफिनेशन देखो, हाउ आई रिमेंबर इट सो मेनी इयर्स। फटाक से मुझे पूछोगे ना लीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अगर मैं फंबल भी कर गया, मैं एक चीज नहीं भूलता हूं, वो है ये वाला चीज, 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose edge is 1 decimeter। if I know this statement I will be able to deduce it also। कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड्स में आ जाएगा आंसर, गलत होने का चांस नहीं है। और अगर आपको रट्टू तोता करके बनना है, वैसे वो बहुत लोग वैसे भी करते हैं, तो याद रखिएगा 1000 cm क्यूब, वो कुछ बच्चे होते हैं ना, दुबे जी में याद कर लेंगे, तो याद कर लेंगे तो ये है 1 मीटर पे होता है 1000 लीटर, जो कि है 1 किलो लीटर। अब आपकी मर्जी, आप कैसे इसको रखो, पर आपको जरूरत तो पड़ेगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसके ऊपर अभी हम प्रॉब्लम करेंगे। कौन सा प्रॉब्लम करेंगे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। विल डू द प्रॉब्लम नंबर 5। देखो तो उसमें क्वेश्चन है क्या, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, you are doing which part? you are doing surface area I think, not volume। पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया अलग अलग होते थे, इसलिए बड़ा एक्सरसाइज होता था। अब जरा क्वेश्चंस को एक बार आंखों आंखों में देखते हैं। इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, डू यू एग्री? वॉल्यूम निकालना है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, कोई भी बच्चा कर लेगा, और जो कैलकुलेशन में है कच्चा, उसका हो जाएगा सब हट्टू कंडीशन। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल, लीटर्स में पूछा है, और आपको सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर बनता है, लेकिन इस बार रेडियस दिया है और स्लैंट हाइट दिया है, यानी जो चीज नहीं दिया है वो है हाइट, छुपा लिया है आपसे। कर पाएंगे इसको? 12 और 13 दिया हुआ है, तो उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है ना, 11 12 13 पे, ठीक है? ओके, नंबर 3 पे आते हैं। हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है। हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेडियस। ये स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम बनेगा, यस और नो? रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट, सो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3v/h होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज व्हाट 1/3 पाई r स्क्वायर h,
तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, आप घर में सी इफ यू डोंट वांट टू डू एट होम देन देयर इज डिफरेंट, आई एम जस्ट सेइंग वेदर प्रिंसिपली यू गेट स्टक इन एनीथिंग। 5 आपने अभी अभी किया है। 6 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन टू यू, डायमीटर इज गिवन मींस रेडियस इज आल्सो गिवन टू यू, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोई भी बच्चा कर लेगा। हाइट निकालना है, हाइट इज इक्वल टू 3v/r², ठीक है ना। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, जैसे ही हाइट निकलेगा स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। लास्ट में बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जैसे ही स्लैंट हाइट निकलेगा पाई आर एल करेंगे तो हमें स्लैंट हाइट भी आ जाएगा। एनीथिंग दैट एनीवन स्टिल फील्स कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे रोकना, लेकिन चलते हैं 7 में। राइट ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल बेटा, राइट ट्राइंगल, यानी कि सारे मेजरमेंट्स क्या होंगे हमारे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। और यहाँ पे साइड क्या कह दिया है, 5, 12, 13। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें 13, 12 दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। तो रेडियस कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि उसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है। इसलिए कान खोल के प्रॉब्लम कीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू से? द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ऑलरेडी रिवील्ड इन क्वेश्चन नंबर 7, which actually is a part of your problem in question number 2. Okay, fine. Is revolved about the side, revolved about the side 12. Revolved about the side 12 means 12 is the altitude, the height. और उसमें घुमाया है। Take a triangle or a set square and turn it on the 12 वाला side. ठीक है? So it says find the volume of the solid so obtained. So it will begin 1/3 pi r square h. And now what will be r? R will be the chota wala, the base. And L will be the hypotenuse always. ठीक है? If triangle ABC in question above is revolved about side 5, now the cone will be more spread on its base and less on its height. Okay? Find the volume of the solid so obtained. Find the ratio of the volume. So volume in question number 7 and volume in question number 8, you find 2 volumes and calculate their ratio. समझ में आया? Do you think that there is principally any issue with you, unless and until all you can mess up is in calculation, but principally I think they are very easy problems. Can we have a look at now the problems related to sphere, okay, and sphere and all? So 11.14, and let us straight away go to the last problem. Last is most tough, people think. Okay, last problem. Achha, you know the difference between a capsule and a tablet, bacha? Tablet is something which is pura solid, capsule is tubular, and in that tube inside the powder is enclosed, which is actually your medicine. So a capsule is in the shape of a sphere, of diameter 3.5. How much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? Very easy, but they are playing on what? They are playing on units with you. So let's draw the diagram first and then try to understand what the question is all about. So we have a capsule, children, and the capsule is in the shape of a sphere. Okay, this is the capsule which is in the shape of a sphere, and they say that the diameter is 3.5. The diameter is how much? 3.5. The diameter is 3.5. क्या है बेटा? Millimeter. Okay, now they're asking you how much medicine in millimeter cube is required to fill this capsule. Obviously the volume they are asking. अच्छा, वॉल्यूम में कैलकुलेशन को आसान कैसे करेंगे? तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ a sphere is 4/3, then pi, obviously we'll take 22/7 क्योंकि 35 है, r cube, each r will be बच्चा 3.5 divided by 2. Do you agree? Each r, ऐसे कितने हैं क्यूब? अब क्या करेंगे? 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 ने 2 को काटा, 2 ने 22 को काटा 11, ठीक है। और कैसा है? 7 ने इसको काटा 0.5, सो हमारे पास है 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 divided by 3. ये है mm cube. Because this is already given in mm, so this calculation is what you have to do.
हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए ना, समझ में आया? A sphere, medicine is in the shape of a sphere. This was question number 10. And the last question of exercise 11.4. कुछ हाँ ना तो बोलो, समझ में आया? बुक आपके पास है, स्फीयर में चले जाइए, वॉल्यूम में स्फीयर में चले जाइए. लास्ट पार्ट ऑफ द बुक, वॉल्यूम एंड स्फीयर. Could you open? Hmm. 100% it will be there. Could you locate the problem, beta? Yes, sir. A medicine, capsule of medicine is the shape of a sphere of diameter this. How much medicine in mm cube is needed to fill this sphere? So that's the volume of the sphere. और mm cube और mm में ही है, तो आसान प्रॉब्लम है. ठीक है? Okay. How many liters of milk can an hemispherical ball of 10.5 centimeter hold? How many liters पूछा है? This is question number 5. So let's see question number 5. We have a hemispherical ball. So let's make a hemispherical ball out from here. This is our hemispherical ball. Okay. This is a hemispherical ball. भिखारी का कटोरा जैसा. और हमें क्या पूछा है? इसमें कितना मिल्क आ सकता है लीटर में. आपको पूछा है लीटर्स में. अल्टीमेटली मींस आपको जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो लीटर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड दे आर आस्किंग दैट द डायमीटर इज 10.5. बच्चा, द डायमीटर ऑफ दिस बॉल इज हाउ मच? 10.5. 10.5 इज द डायमीटर. ये कीजिए तो, दिस इज 10.5 सेंटीमीटर. अल्टीमेटली आपको आंसर लाना है. हाँ, वॉल्यूम में हमेशा 3 बार ही तो होगा. क्या भूतनी के सवाल पूछ रहे हो? 4/3 पाई आर क्यूब होता है. हाँ, वॉल्यूम है, स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर एरिया में होता है. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है. और याद रखिएगा, जब आप वॉल्यूम को लीटर में, आपका आंसर आएगा सम ब्ला ब्ला सेंटीमीटर क्यूब. आप याद रखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. और फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. वो अगर 4/3 है, ये 2/3 पाई आर क्यूब होगा. वो 4/3 है, इधर इधर गया है. वो 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3. But I want you to do this problem and find out the quantity of milk that it can hold in liters. जो किताब ने पूछा आपसे, आप वही आंसर कीजिए. फिर मैं एक प्रॉब्लम देता हूं. 11.1 क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 141. 11.1 क्वेश्चन नंबर 6. एंड फॉर सृष्टि, ये है कौन का सरफेस एरिया वाला एक्सरसाइज ले, जिसमें वो है ना, कॉर्न छिला हुआ है ना, कॉर्न छिला हुआ एक फोटो है, देखो उस वाले पेज पे आ जाओ, कौन छिला पेज पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टूम. कोनिकल टूम मतलब कोनिकल कब्र है किसी का, मजार. इज ब्ला 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 ब्ला. फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया. अब वो कर्व सरफेस एरिया ही तो व्हाइट वॉश करेगा ना, अंदर जाके वो कंकाल को थोड़ी व्हाइट वॉश करने वाला है. सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया. वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग का रेट क्या है? 210 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, 100 मीटर स्क्वायर, और आपको सारा कुछ मीटर में है. एक और प्रॉब्लम दिया जाए आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए तो कोई. अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. ये हो गया, कर पाए इसको? इसमें भी गुड. ओके, लेट्स सी सम मोर. ओके, टाइम हो गया है. So we will get into circles on our next class. It is a very easy chapter unless and until you goof up. Just see how you can speed up your calculation time. Any school has done this exercise so far? No. Okay, we get into circles from our next class, and our next class is on which date? Monday. What time?
9:30 a.m. in the time. In case you feel that you are unable to wake up, you have the freedom to join from your sweet home also. I don't mind that. Okay? So wishing you all happy Dhanteras, छोटी बड़ी मीडियम दिवाली जो भी है, and be safe. Do not show too much of बहादुरी and start doing some burns ones. ये सब मत करो. Don't be a pain for your parents. As simple as that. Enjoy Diwali in a safe manner. Okay, bye.